Sutta, but he said he never did go to the, school, or never learned the Pali, but he can refer and he can tell us. And he was telling that, no. Guruji is not saying that you have to be limited, but, many teachers also, don't read it and don't explore the things. Guruji also telling, look at the khandas, look at the, nibarans, and that we don't do it. So, I was referring to you as well. So he said, yeah, you forwarded his, this thing to me. So I listened. Somehow he's, good. He's telling whatever he's telling is the truth. We need to do it. So in this, what I'm telling is that since 6 or 7 months before, from Asutosh or your discussion inspired to me, then after that I started to listen this Hindi and the, Aris and with other people. And somehow I changed my things that I should not stick whatever, I am learning in 10 days course, because I have not attended, the 20 days. So, your things help to me. So I thought that it is good to join to know the things, because you are also teaching the Dhamma, as well the, Sutra is saying, and even you are referring the sutras. So you are not deviating from the Sutra. That means it should not be things. And I see the comment that why you are accusing the Goenkaji always something. I was looking the comments. Sometime I did have also in the mind why Visalji, always, something, maybe disgrading or something Goenkaji, and later on you are telling that there is nothing, Sunne, if you stick on his word, on his, the things that you stick it. So then, somehow I was like to also write the comment, but later on I thought, no, since why I'm so much attached with his voice, with his, the body, he was not teaching me the listen to my voice, look at my body. So whatever he is saying is the truth, but because of my attachment, I'm reacting. So I don't know whether I'm, looking at this, but anyway, so sorry. I took a little bit more time to talk it. Thank you. वेलकम. सो आज का जो है, आज हम संज्ञा के ऊपर ही बात करने वाले हैं. सो आई हैव आस्क्ड आशुतोष टू बी देयर ऑन द कॉल. हम लोग अभी 1 घंटे के ऊपर हमारा चल रहा था, तो मैंने कहा अभी तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, आज का विषय वही है, तो यू विल एंजॉय. ठीक है, उनको तो रहना है, उनके और आपके बीच के एक बार आपने किसी थर्ड पर्सन रखा था. मेरे को लगता है कि someday I should stay with you people are there, so let me listen. आप दोनों को सुने तो अच्छा लगता है. Thank you. No problem. So let's come back to what we wanted to discuss. So रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये 5 खंड है. Now एक व्यक्ति अगर कहेंगे, समझिए आप ही को लेते हैं, तो आप कहाँ से हैं? नेपाल से हैं जी. ठीक है, नेपाल में कहाँ से हैं? कहेंगे काठमांडू से या पोखरा से या कहीं से, तो कहेंगे जी. तो आप कहाँ से हैं? Where are you from? I'm from Nepal, and from Nepal, Kathmandu also migrated from nearby, Mount Everest, the nearby Mount Everest. My birthplace was over there. Khumbu, maybe Khumbu? Khumbu is it called the Khotang? So Khotang, okay. Sulu Khumbu is the next of my the district. Right. So let's take Kathmandu. When we say Kathmandu, क्या आता है? अगर किसी ने देखा ही नहीं काठमांडू, उसके मन में कुछ नहीं आएगा जी. जिसने काठमांडू देखा है तो क्या आएगा उसके मन में? या वो संज्ञा की वो काठमांडू जो उसने देखा है वो आएगा, इमीडिएटली आ जाएगा, वही आ जाएगा. ठीक है ना? तो ये संज्ञा हो गई. अभी ये संज्ञा होगी तो कहाँ पे मुझे आना है? अगर मन में आता है कहाँ आना है, तो मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, आपको आना है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, तो मैंने अपने बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़ा और 3 घंटे में मैंने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिभुवन में पहुंच गए. त्रिभुवन में आ गए जी. हाँ. त्रिभुवन में आने के बाद मेरा एक निजी दोस्त है, वो भी काठमांडू में रहता है.
So good news is that I have all the people in all the corners, especially on the Himalayan side. मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ कॉल करना है, भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो पूरा इंतजाम कर देता है। एक गाड़ी वाड़ी लेके आ जाता है तो पिकअप के लिए, तो उनका फैमिली भी आ जाती है। ठीक है, तो मैं अभी उतरा काठमांडू में। उतरने के बाद कहाँ जाना है, तो मैं कहूँगा देख भाई, मैंने तो तुम्हारा शहर पूरा देख लिया है, काठमांडू देखा है, पटान देखा है, भक्तापुर देखा है, अभी कहाँ जाएंगे, पोखरा देखा है, ठीक है, और कहाँ जाए, तो अन्नपूर्णा जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। एंड आई बीन ए ट्रैकर, तो ठीक है, तो ट्रैकिंग जाएंगे, और हिमालय से मेरा लाइफ है। ठीक है, तो अभी मैं कहूँगा कितने हाइट पे जाना है, तो 17,000 तक मैंने किया है। तो मैंने अपना क्या कहते हैं वॉकिंग पोल लिया, रक्सैक डाला, कई 20 किलो वाला, चल पड़ा। ये जो ड्रामाबाजी चल रही मेरी, ये पूरा संन्या है। इट्स अ परसेप्शन ऑफ व्हाट। अभी मुझे कहाँ क्लाइम करना है, अन्नपूर्णा पे। अगर मैं सच में देखता हूं अन्नपूर्णा क्या होता है, वो एक माउंटेन है। उसमें अन्नपूर्णा है क्या? अन्नपूर्णा 1 2 3 4 5 माउंटेन्स है। ओके, अभी देखिए, पोखरा से हम देख रहे हैं फिश टेल। किसी को मछली का ऐसा दिख रहा है, तो किसी ने कहा ये फिश टेल है, तो क्या हो गया, फिश टेल। सही है, पर वो माउंटेन पे जाके देखेंगे तो फिश टेल क्या, कुछ भी टेल नहीं है वहां पे। सही है, तो दिस इज द परसेप्शन। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें देखना है, जैसे मैं आशुतोष को कह रहा था, मेरे पास 2 उपाय है, एक गोयंका जी, एक 2 ही लोग, ज्यादा लोगों को नहीं लेते, एक गोयंका जी और एक बुद्ध है। ठीक है, कहाँ पे मुझे गोयंका जी को लेना है, कहाँ पे मुझे बुद्ध को लेना है, ये मेरे टेंशन है। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्टिंग क्या करें। तो मेरे संज्ञा में, मतलब मेरे परसेप्शन में ऐसा लगता है कि मेरे एक दोस्त है, वो कहता है कि विलास तुम गोयंका का ये एक शिविर करो, अपना गुरु जी कैसे बताते हैं ना, तुम एक शिविर करो। मैं कहता हूं नहीं यार, 10 दिन का शिविर के लिए नहीं मिल रहा है मुझे, घरों ना यार, मैं क्या है, डोंट गो एनीवेयर एल्स। मैं कहता हूं मुझे नेपाल जाना है, मैं कहता है नहीं, नेपाल कैंसिल करो, तुम शिविर करो। तो किसी भी तरह मैंने 10 दिन का शिविर के लिए एप्लीकेशन डाला। तो मैंने ये सोचा कि काठमांडू में ही करेंगे, क्यों ना करेंगे, काठमांडू में करेंगे, नेपाल में ही करेंगे, नेपाल का भी हो जाएगा। तो 20 दिन का मेरे पास लीव है, 10 दिन इसके लिए हो गया, 10 दिन नेपाल साइट सीइंग हो जाएगा। अभी मेरे परसेप्शन में, संज्ञा में यह है कि गोयंका जी का अगर मैं करता हूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने इतने बार कहा है विलास तुम्हें करना चाहिए, विलास तुम्हें करना चाहिए, विलास तुम्हें करना चाहिए। वो बार 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 होते होते मन में बैठ गया। तो मन में जब भी बैठ जाता है, बुद्ध कहते हैं मरीच उपमंच संज्ञा। मरीच का मतलब मिराज है, उपमा का मतलब है एग्जाम्पल, संज्ञा का मतलब है परसेप्शन। अगर एक ही चीज के ऊपर आप बार 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 लगे रहते हो, तो वो बैठ जाता है। जैसे मैं पति हूं, आई एम हस्बैंड, किसी ने मुझे शादी करने के बाद कहा तुम मेरे पति हो, 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 तुम मेरे पति हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी मैं मन में मैं ही पति हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही पति हूं, ऐसा चल रहा है। हाँ, तो मैं जिसको देख रहा हूँ मैं कहूंगा यही पत्नी है, यही पत्नी है, यही पत्नी है, यही पत्नी है, अंटिल आई डिवोर्स है। हम दोनों
इतने झगड़ रहे हैं एक दूसरे का, अभी फिजिकल भी चल रही है। और वो शाम को कहीं पे यहाँ काटती है और कहती है कि अभी देख तेरे ऊपर मैं केस डालती हूँ। अभी क्या करो, मैं कहूंगा अरे मैंने नहीं किया, मालूम है तुमने नहीं किया, पर तुम्हें तो अंदर डालती हूं मैं। तो ये हमारा झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। तो एनीवे वी कन्विंस्ड ईच अदर कि सेटलमेंट के लिए। तो उसने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे 25 लाख चाहिए। मैं कहता हूँ 25 लाख मेरे पास नहीं है, तो कहीं से भी लेके आ जा, 25 लाख फाइनल। फिर मैंने बहुत नेगोशिएशन किया तो 20 लाख पे आ गई। तो मैं 20 लाख पे हमारा डिवोर्स पेपर साइन हो गया। अभी मैं बैठ के सोचता हूं, सच में तो वो मेरी पत्नी था ही नहीं पहले से, फ्रॉम द बिगिनिंग, नॉट नाउ, फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यों? इट इज जस्ट अ मिराज। आई कैनॉट फाइंड हर। आई कैन सी अ बॉडी बट दैट्स नॉट अ वाइफ। कैसे? मैं एक दिन बैठा था विनोद जी, अजीब हुआ। उसकी माँ कहती है बेटी, उसके परसेप्शन में ये बेटी है, मेरे परसेप्शन में वही बॉडी है, अभी पत्नी है, मेरे बेटे के लिए माँ है, उनके भाई के लिए ये बहन है, और पासपोर्ट में इंडियन है, और हमारा एक और कागज होता है स्टेट का, उसमें एक कर्नाटक वाली है, और बाजू वाले के लिए पड़ोसी है। ये मैं देखा ये क्या हो रहा है, वही बॉडी, इतने सारे परसेप्शन, ये दाल में काला है भाई। मतलब ये अगर पत्नी है तो वो भी माँ यही कहनी चाहिए कि ये पत्नी है, वो कहती बेटी है। ऐसे कैसे हो सकती है? एक ही बॉडी, पत्नी और बेटी दोनों कैसे हो सकती है? अजीब अजीब लगा। तो अपने नाम पे ऊपर भी मैंने ऐसे किया कि मैं विलास इंडियन हूं, ठीक है। इसके बाद में देखा मैं भी कर्नाटक वाले का हूं। फिर मैंने देखा मैं पति हूं, किसी के लिए भाई हूं, किसी के लिए मैं पिता हूं, किसी के लिए पड़ोसी हूं, है ना, किसी के लिए मैं कोलीग हूं, और वो किसी के लिए वो मैं बॉस हूं उसका, किसी के लिए मैं सबॉर्डिनेट हूं। ये क्या नाटक चल रहा है? मुझे समझ में आया कि बुद्ध एक कह रहे थे कि मरीच उपमंच संज्ञा, ये मरीच की तरह है। मरीच का मतलब है मिराज, ये मिराज है, तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे इसको। तो विलास को कहां ढूंढे? नहीं है भाई। जो व्यक्ति है ही नहीं है उसको कैसे ढूंढ पाओगे? अगर होता है तो ढूंढ सकते हैं। देखिए अभी विनोद जी आप न्यूयॉर्क में रहते हो, वैसे कोई शहर है भी नहीं है, वो नाम है। हाँ, तो आप विनोद जी आप बताइए, आप नेपाली है, अभी आप कहेंगे मैं अमेरिकन हूं, क्योंकि आपका पासपोर्ट तो अमेरिकन है। तो नेपाली का क्या हो गया? यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड, दैट मीन्स आपने डिवोर्स कर दिया, यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ नेपाल। जाते होंगे नेपाल में, पर आपका अभी वीसा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इवन इफ यू, जैसे इंडियन का होता है ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे नेपाल का भी है, मुझे मालूम है आपका भी है वैसे ही। जी। हाँ, तो आप वहां लैंड खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। यू आर नॉट ए नेपाली, यू आर एन अमेरिकन, यू आर एन अमेरिकन नेपाली, बट यू आर एन अमेरिकन। तो परसेप्शन क्या है अभी, नेपाली हो या
अमेरिकन हो, आप बताओ मुझे। जो विनोद रोका जो पहले नेपाली था वो मर गया, अभी जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। नाउ हु आर यू देन? इट्स जस्ट अ परसेप्शन, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। इन द सेम वे, अगर मैं गोयंका जी का टेक्निक करता हूं, इट्स अ परसेप्शन, इट्स जस्ट अ परसेप्शन कि ये वर्क होगा। नहीं हुआ, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, तो मैं कहूंगा ये वर्क नहीं होगा। तो मैं कलाप देख रहा था, कलाप आ रहा है, तो बुद्ध कहते हैं देख भाई, ऐसा है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ठीक है ना, तुम्हें ये सब कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं एक बीच या कहीं पे जाओ, वहां पे तुम्हें बहुत सारे वेव्स मिलेंगे, वहां पे फोम आएगा, मतलब फेन। तुम उसको देखते रहो, अपने बॉडी और फेन दोनों एक ही है, ऐसा करके रखो, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। मैंने ऐसा किया। मैंने क्या किया, मेरे यहाँ बेंगलुरु में यहाँ पे कोई सी शोर है ही नहीं है, तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक बड़ा, इतना बड़ा वाला बकेट लिया, उसमें मैंने सोप पाउडर डाला, पानी छोड़ा, तो फेन आ गया। उसमें मैंने क्या किया, एक व्यक्ति का बॉडी बनाया, मैं उसको देखता रहा ऐसे। ये 5वां दिन 6वां दिन गोयंका जी के शिविर में आपको कलाप का एक्सपीरियंस होता है करके कहते हैं। मैं गया नहीं था तभी, तो लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि तीसरी चौथी दिन आपको धारा प्रवाह होती है, फिर उसके बाद में ये आता है। तो मैंने ये फेन में ये इसमें देखता रहा, पट 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 करके ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वही आ हुआ है भाई। एक कलाप का एक्सपीरियंस हो गया वहीं पे सोप पाउडर में, और पानी भरने से मुझे देखा, यही एक्सपीरियंस हुआ। जो गोयंका जी कलाप कलाप करके कहते हैं, यहां पर भी कलाप कलाप ही हो रहा है। इसको कलाप कहो या आलाप करो, तो ये तो हो रहा है। तो मैंने देखा हाँ ये वर्क होता है। अभी मैंने देखा संवेदना, बॉडी में संवेदना आती है, हाँ ये आती है, और यहां पर भी वेदना हो रहा है। कैसे? समझो, मुझे बारिश भीगने से बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश आ रही है अभी, मैं एक क्लास छोड़ देता हूं और भागता हूं रोड में, भीगता हूं, नाचता हूं। पेन तो हो रही है क्योंकि पानी का ये टकले के ऊपर पानी गिरती है ऊपर से, अच्छा लगता है सोचिए। पर मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भीगना अच्छा लग रहा है, तो सुख वेदना आ गई। वही चीज, अगर मुझे ये पानी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं गाली दूंगा कि क्या बारिश आ रही है, अभी मैं कैसे जाऊं, छाता लेके जाना पड़ेगा, ये वो, दुख वेदना आ गई। अगर मुझे कुछ काम के लिए, समझो किसी ने मुझे 25 लाख दूंगा करके मुझे फोन किया था, डोनेशन, अपना एक ट्रस्ट है उसके लिए, कहा विलास जी आ जाओ, मैं 25 लाख देना चाहता हूं। भागा मैंने बारिश में, ठीक है, और पूरा भीग रहा हूं, पर आई एम नॉट कंसर्न अबाउट गेटिंग वेट बिकॉज माई माइंड इज फिक्स्ड ऑन गेटिंग 25 lakhs। तो दुख असुख वेदना आ गया। तो बुद्ध ने जो कहा था वहां पे, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया। अभी संन्या को देखिए, 25 लाख के लिए ये व्यक्ति भीग के जा रहा है। व्हाट अ बैड परसेप्शन, राइट? दैट मीन्स आपको कुछ चाहिए तो आपका परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। मैंने देखा परसेप्शन चेंज हो गया। संखार, अभी 25 लाख लेने के लिए मैं यहां से करीबन 40 किलोमीटर ड्राइव करके जा रहा हूं, वो भी रात में। कभी पहुंचूंगा, वो भी बेंगलुरु ट्रैफिक तो कोई कुछ नहीं कह सकता, करीबन 2-3 घंटे तो लग जाएगा जाते जाते। और डर भी है कि 25 लाख लेके आ रहा हूं, तो किसी ने मुझे कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम है, फिर भी लेके आना है, तो मैं भाग रहा हूं वहां पे।
तो मेरी पत्नी कह रही मत जा, अभी लेट हो गया, कल चले जाओ। मैं कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते, अपने को 25 लाख मिल रहा है। भागा, 3 घंटा ड्राइविंग किया, तो फिर ऐसा बैठा हूं, संखार किया। फिर वहां गया, वो व्यक्ति मुझे वेट करते करते वो चला गया। उसने अपने पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। मैं पहुंचा उनके घर, टिंग टोंग कुछ नहीं है। फिर मैंने फोन किया, सर आपके घर के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा विलास जी, मैंने कब आने के लिए कहा था, मैंने आपको 6 बजे से पहले आने के लिए कहा था, आप तो आए वो 8:30 बजे। ये भी कोई आने का टाइम होता है? हम लोग फिल्म में हैं। अभी विज्ञान में क्या आया, पूरा जो चल रहा था मूवी बंद हो गया। अभी मुझे आते आते कार इतनी कष्ट लेके आ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान प्रैक्टिकली देख लिया। आते हुए समझ में आया 25 लाख क्या है, परसेप्शन है। उसको लेके तुम क्या करोगे, चाटोगे? नहीं। हाँ, तुम्हारे ट्रस्ट के लिए दे रहे हैं, वो तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं, वो ट्रस्ट के लिए दे रहे हैं। तुम्हें अगर यूज करना है यूज करो, नहीं यूज करना है इसको कह दो भाई, जब भी चाहिए तो बता देंगे, अभी आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, आप रखो। तो मैंने कार को रोका, रास्ते में आराम से कार से उतरा। वहां एक पार्क था, वहां जाके बैठा, रूप को देखा क्या होता है, कुछ भी नहीं है। वेदना को देखा, संज्ञा को देखा, संखार को देखे, विज्ञान को देखा, कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज को डिफिनीशन नहीं देंगे, 25 लाख एक डेफिनेशन है। लाख, 1 लाख का मतलब होता है कि इतना ऐड करेंगे तो 1 लाख होता है। अगर उसको हटा दिया जाए तो लाख चला गया, तो वो 1000 में आ जाएगा। अगर ये काउंट नहीं करेंगे तो 1000 चला जाएगा, मतलब 10,000, 90,000, 99,000। तो ये 1000 ही नहीं है, तो 100 पे आ जाएगा। अभी 100 को हटा दो तो 10 पे आ जाएगा, 10 को हटा दो 1 पे आ जाएगा, 1 को भी हटा दो तो। तभी मुझे याद आया, अरे बाप रे, 8 नवंबर 2016, ये दिन याद है। जब भी हम लोग रोड में जा रहे थे कहीं, तो मेरा जो छोटा भाई है उसने मुझे फोन किया, भैया तुमने टीवी देखा? मैंने कहा 6 बजे क्या टीवी देखना है? अरे देखो। मैंने कहा मैं रोड में हूँ, टीवी कहाँ देख सकता हूँ? अरे तुम्हें कुछ कहना है, बताओ। अरे अभी 500 नोट, 1000 रुपए का नोट अभी डिमोनेटाइज हो गया। मतलब अब अगर अगर आपके पास 500 का, 1000 का नोट है तो हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, तुम्हारे पास अगर नोट है तो बैंक को दे दो। तो हम लोग 9 तारीख आए वापस। वापस आने के बाद देखता हूं बैंक के सामने 2-3 किलोमीटर का क्यू है, और एक लेटर डालना पड़ेगा कि मेरा ही पैसा है, मेरा इतना पैसा है, अभी डिपॉजिट वापस दे। पहले 500 और 1000 चलते थे। परसेप्शन देखो, अभी परसेप्शन ये है कि चलेगा नहीं, तो क्या करें, चाटे? नहीं, बहुत सारे लोगों ने फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि इट लॉस्ट द वैल्यू। तो मुझे समझ में आया, जब भी मैं कार पार्क किया, याद आया, अरे विलास भाई तभी हुए हुआ था,
अभी वैल्यूलेस हो गया। तो फिर ऐसे जाते जाते 2020 कोविड आ गया। कोविड आने के बाद यहाँ मेरे घर के सामने पूरा बैरिकेड डाल दिए। अगर किसी का भी एक घर में कोविड आ गया तो पूरा रोड ब्लॉक है और कोई भी नहीं देख सकता बाहर से। पूरा आपको घर में बैठना पड़ेगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हम लोग नीचे तक नहीं गए। अभी क्या समझ में आया? ये परसेप्शन कि आपका बॉडी है वो भी चला गया, क्योंकि आप ये खा नहीं सकते। वो एक टाइम पे वो वेजिटेबल वेंडर आता है, उसी से लेना है, उसको भगा देते हैं, फिर पुलिस आके बस हो गया। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, ऑफिस का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर का काम नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठे रहो, ये पकड़ के बैठो कि आपको कोविड ना आए। कोविड आया तो टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाओ। हर एक व्यक्ति का टेस्टिंग लेते हैं। तो क्या हो गया, एक हमारे नीचे एक व्यक्ति को कोविड आ गया, सिम्टम एसिम्टोमेटिक आ गया, बस हो गया। वो बिल्डिंग को ही ब्लॉक कर दिए। अभी हमारा अपार्टमेंट है, पूरा ब्लॉक कर दिए। मतलब अभी थोड़े तो नीचे जा रहे थे, वो भी बंद हो गए। तो संज्ञा क्या हो गया, रूप क्या हो गया? तो मैंने ये सब याद किया जब मैंने कार पार्क किया, तभी समझ में आया निब्बाणम परमम सुखम किस लिए कहते हैं। क्योंकि जब ये रूप नहीं है तो वेदना नहीं होती है, जब वेदना नहीं होती तो संज्ञा नहीं होती है, जब संज्ञा नहीं होती तो संखार नहीं बनते, जब संखार नहीं बनते हैं तो विज्ञान नहीं आता है, तो राग द्वेष मोह बंद हो जाता है। इसीलिए निब्बाण होता है। तो मैं वहीं बैठा, वो एक पार्क का एक बेंच था, ऐसे बैठा, पागल कहीं के। तो 40 किलोमीटर क्यों जाना चाहता है भाई? ये तेरा परसेप्शन ही तुम्हें लेके जा रहा है, हटा दे। क्योंकि 25 लाख करके सुनने के बाद तुम भाग रहे हो। डिमोनेटाइज जब भी हुआ था 25 लाख था, जिसके पास 25 लाख था बैंक ने कहा 2000 तक ही अलाउड है, बाकी ब्लैक मनी है। तो क्या किए लोगों ने, टॉयलेट में पैसा डाल के फ्लश किए। बहुत सारे लोगों ने आग में डाल के बर्न कर दिए। ये मैंने देखा। तो रूप क्या होता है? कौन सा रूप, किसका रूप की बात कर रहे हैं? तो मैंने बैठा, विलास भाई तू बाप है, रूप है सेपरेटली, बाप का नहीं है। तो पति का एक सेपरेट रूप है, चलो बेटे का एक सेपरेट रूप है, नहीं। पड़ोसी का रूप है, नहीं है। इंडियन का रूप है, नहीं है। तो कौन सी रूप तेरा है भाई? तो मुझे एनलाइटनिंग हो गया, अरे रूप ही नहीं है। तो वेदना वहीं के वहीं रुक गई। क्या उपेक्षा हो गया, इक्वानिमिटी। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच अ नाइस इक्वानिमस स्टेट। क्योंकि रूप ही नहीं है तो वेदना कहां से आई? आ ही नहीं सकती। तो वेदना हो गया, तो संज्ञा चला गया, अनिच्च संज्ञा हो गया। पहले विलास था, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, अभी विलास करके कोई है भी नहीं। ये मैं बॉडी को देखता हूं, जैसे मैं छोटे बच्चा था, अभी का जो है दोनों डिफरेंट है। तो मैंने घर आने के बाद, वहां से ड्राइव करते हुए 4 घंटे लगे आने के लिए,
तो मैं 11 बजे पहुंचा यहाँ पे। आने के बाद मेरे पत्नी से कहा, देख आज मुझे नींद नहीं आने वाली है, कुछ अजीब होने वाला है, मेरा जितना भी छोटे बच्चे का एल्बम है वो मुझे लेना है। तो मैंने बोला पूरा, मेरे पिताजी ने जो फोटो लिया था, माँ ने जो फोटो लिया था, सब लिया, एक एक करते जुड़ता गया। देखता हूँ इसमें बॉडी मेरा एक भी नहीं है। जो स्कूल में मेरा चड्डी था, मेरे माँ ने एक चड्डी रखी है अभी भी, इतनी छोटी है, वो मेरा इसमें भी नहीं जाएगी। वो एक्चुअली नीचे का पूरा भरता था। तो मैंने देखा, भाई तेरा एक भी नहीं है इसमें, तो इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, किधर भी नहीं है, तो क्या पकड़ के बैठा है फिर मैं करके। तो मेरे पत्नी से कहा, देख अभी 12 बज गए हैं, मेरा 12 बज गया है, आई एम नाउ नोइंग कोई विलास करके है ही नहीं है। जो विलास 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 करके है, ये मर गया है। और जिसको तुम देख रही है वो भी मरा है। एक दिन सो गया तो मर गया, अगले दिन उठा फिर मर गया, अगले दिन उठा फिर मर गया। उत्पाद तिथि भंग हो रहा है। समझ में आ गया? तो वेदना चली गई। और अभी परसेप्शन पे क्या देख रहा हूं? नित्य संज्ञा देख रहा हूं या अनिच्य संज्ञा? अनिच्य संज्ञा कैसे? ये वे फोटोज देखता हूं, इसमें कौन सी परसेप्शन मेरा है? एक भी नहीं है। जितनी भी एक्सपीरियंस हुआ है, जब भी मैं छोटा बच्चा था, होमवर्क नहीं किया था, माँ ने डांटा था, अभी याद है? नहीं है। पिताजी आए थे, बहुत गुस्से में थे, मैंने होमवर्क नहीं किया था, मार पड़ी थी, याद है? वो सब छोड़ दो। 4-5 दिन पहले एक यहाँ पे सोनिया महाजन करके है, इन्होंने मुझे कुछ ऐसे प्रश्न पूछा, तो मैंने अपने थप्पड़ पे इतना मारा, किसी और के थप्पड़ पे नहीं, अपने थप्पड़ पे, अपने ही चेहरे पे मारा। आज मैं याद करता हूं तो इसमें कुछ है भी नहीं है। वो तो छोटे बच्चे का था, पर मैंने इनके सामने मारा है। ये लोग देख रहे थे मुझे, ये क्या कर रहा है। सचमुच में मैंने मारा। उस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि अगर कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि पागल आदमी क्या कर रहा है। फिर मैंने अपने ही चेहरे पे मारा है। तो देखिए, वो मारने के बाद वो बिल्कुल करीबन 11-12 बजे अगले दिन तक, अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, नहाने गया तो पानी यहाँ गिरा, इतना पेन हुआ, मैंने इतनी जोर से मार डाली थी। ठीक है। और दूसरे दिन चला गया। अभी याद भी नहीं है कि मैंने यहां ऐसे मारा था। तो जैसे छोटा बच्चा था, इतने बार मार खाई है, एक बार यहां एक बार यहां, किसको याद है? तो कौन सी रूप, कौन सी वेदना, तभी तो वेदना आई थी। जैसे मैंने ऐसे मारा यहाँ पे 3-4 दिन पहले, वेदना तो हुई, दुखद वेदना आई, 100% आई। चाहे मैं अनागामी हूं या कौन सा भी हूं, आए तो सही, आई। इतनी जोर से मारा था। क्यों? क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से नहीं आ रही तो टेढ़ा करके ही करना पड़ेगा। मैंने इतनी बार अपने मन को समझाया, देख भाई गलती नहीं करते, तो वो गलती कर रहा है तो। अभी वो संज्ञा किधर गया? तो इसका जो संज्ञा था थप्पड़ का, वो किधर गया? तो वो चला गया।
फिर विज्ञान आया उसका, अभी तो विज्ञान है ही नहीं इसका। मतलब आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग कि मैंने इतनी जोर से ये दोनों थप्पड़ मारे थे। तो इट इज अनरिलायबल। समझ में आ गया? रूप समझ में आ गया, वेदना समझ में आ गया, संज्ञा समझ में आ गया, क्योंकि थप्पड़ अभी है नहीं। संखार कर रहे हो अभी ना, अगर मैं थप्पड़ नहीं मारता हूं तो वेदना नहीं आ रही, मतलब संखार नहीं किया तो भी नहीं आएगा। तो क्या हो गया? सब संखार समथो, समता हो गया। सब्बूपति पटि निस्सग, मतलब जो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को मैंने छोड़ दिया। सब्बूपति पटि निस्सगो तन्ह खयो, क्रेविंग बंद हो गया। विरागो, राग चला गया। निरोधो, निरोध हो गया। निब्बाण, 100%, इसी समय इसी वक्त हो गया। ना राग है, ना द्वेष है, मोह हो गया। सो इफ आई कट आउट द परसेप्शन, मतलब जो नित्य संज्ञा बनी है क्योंकि फिक्स्ड है, विलास करके फिक्स्ड है, बैंगलोर करके फिक्स्ड है, न्यूयॉर्क करके फिक्स्ड है, न्यू जर्सी करके फिक्स्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करके फिक्स्ड है, लंदन करके फिक्स्ड है। एवरी प्लेस इज फिक्स्ड एंड एवरी रिलेशनशिप इज फिक्स्ड। इसीलिए हमारे मन में लगता है कि वो टिका है। तो भाई रहता है कंडीशन में, पत्नी रहती है कंडीशन में, पति रहता है कंडीशन में, बेटा रहता है कंडीशन में, बेटी रहती है कंडीशन में, पड़ोसी बनते हैं कंडीशन में। अगर वो कंडीशन हट गई तो नहीं रह सकते। तो व्हाट्स अ कंडीशन? जब तक दोनों वही बात करते रहेंगे तो बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि दो सच है, एक समुचित सत्य, सामूहिक सत्य, एक परमार्थ सत्य, पारमार्थिक सत्य। इसका मतलब क्या होता है? जो समुचित सत्य है इसमें विनोद रोका है, इसमें रवि अरोरा जी भी है, एक अवंती करके भी है, एक दक्षा करके भी है, एक मधुलिका करके भी है, वैसे सब लोग हैं, और विलास भी है। इसीलिए सामूहिक, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, सच में नहीं है पर आइडेंटिफिकेशन के लिए। आई भाई ये क्या है, ये नहीं कह सकते केसा लोमा नखा दंता वगैरह वगैरह, तो इसको कहते हैं विलास है। सिंपल। लेट्स कॉल 32 parts of the body as vilas. Fine. Good one. Let's call 32 parts of the body as Binod. Fine. Let's call 32 parts of the body as Ravi. Fine. Let's call the same 32 parts of the body as Avanti. जब हमारा इतना ही रहेगा, राग नहीं जगेगा, क्योंकि सिर्फ 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, 32 के बॉडी पार्ट्स है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। एज लॉन्ग एज देर इज नो पर्सन, अत्त पर्सन, देर इज नो राग, एक भी राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, क्योंकि 32 पार्ट में तो कुछ देखने के लिए है भी नहीं है। तो केसा लोमा नखा दंता वगैरह 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 पूरा 32 पार्ट्स आप रख लो टेबल में, चाहे वो अवंती का है या दक्षा का है या मधुलिका का है या विनोद का है या विलास का है या रवि का है या किसका है, नाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाल बाल होता है, गाल गाल होता है वगैरह करेंगे तो हमारे पास दो ही मिलेगा, एक है मिट्टी मिलेगा, एक है पत्थर मिलेगा। जो हार्ड है वो पत्थर बना दो, जो सॉफ्ट पार्ट्स है वो मिट्टी बना दो, सारा मिक्स कर दो, तो क्या मिलता है? कौन मिलेगा इसमें? इसमें कोई नहीं मिलने वाला। अच्छा ये समझ में नहीं आ रही है, सिंपल है।
वी विल पुट अ पिट, जैसे आई हैड बीन ऑन माउंट रेनियर, वाशिंगटन स्टेट में, सियाटल के ऊपर है, वहां पे टॉयलेट के लिए एक पिट बनाया है। एंड इंडिया में तो हर जगह मिलता है, पर अगर इफ यू रियली वांट एक्सपीरियंस इन अमेरिका, यू विल हैव पिट्स। तो पिट के नीचे बैठ जाओ, ऊपर तो वो बैठा है, नीचे आ रहा है उसका, वो पिट पे गिरती है। नाउ यू वॉच, इसमें कौन किसका है, नीचे से जो आती है किसका है, किसी का भी नहीं है। चाहे करोड़पति का है, वहीं से आती है, एक भिखारी का है, वहीं से आती है, और दोनों का मिक्स भी हो जाती है। एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है, एक ब्लू कलर, ब्लू नहीं होता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, या ब्राउन कलर हो सकता है। सब मिक्स कर देंगे, तो ऐसा करेंगे, वो पूरा लेके मिक्सी में डाल देंगे, ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे, ब्लेंड हो गया। नाउ कैन यू फाइंड आउट ये किसका है? ना उसमें रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, ना संखार है, ना विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान नहीं आएगा इसमें। यू कांट आइडेंटिफाई। देन विराग हो गया, क्योंकि जो नीचे से आ रहा है, ऊपर से तो पिज्जा खा रहे हैं, नीचे से क्या आ रहा है? पिज्जा थोड़ी आ रहा है। या कोई कहता है सुशी खा रहा हूं, अरे सुशी खाओ या पुशी खाओ, नीचे से तो वही आती है। तो नाउ आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ, रूप कुछ भी नहीं है तो वेदना नहीं आती, तो संज्ञा नहीं होती है, तो संखार नहीं आते हैं, तो विज्ञान नहीं बनता। किसका विज्ञान नहीं बनता है? विनोद रोका करके नहीं बनता, रवि अरोरा करके नहीं बनता, अवंती करके नहीं बनता। देखिए उनका नाम अजीब है, अवी करके है, लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, और मैं इनको अवंती कैसे कह रहा हूं? लिखा तो अवी है, तो मुझे क्या कहना चाहिए था? अवी, जो लिखा है। अभी देखिए मैड पी कहना चाहिए मुझे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज शोइंग ऑन द स्क्रीन। पर मुझे बताया गया है, अभी मेरा संज्ञा चेंज हो रही है, कहता हूं कि मधुलिका पी, पी का मतलब पांडे है, तो मधुलिका पांडे, पर लिखा तो मैड पी है। आर यू मैड? यस, दैट्स व्हाट शी इज रिटन, मैड पी। शी इज मैड फॉर पी, आई डोंट नो व्हाट इज पी, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। देखिए यहां पे कोई तनिष्का आईमा करके है, वो क्या होता है? The same 32 part of the body is called a Tanishka Aim. And the same 32 part of the body is written as Veena AR. ये क्या पता नहीं है। और यहां पे देखिए the same 32 part of the body, इसको कहते हैं घनश्याम दास। ये लोग कौन है? सेम है पर नाम अलग है। परसेप्शन क्या आ रहा है? यह व्यक्ति है, नहीं है। आई फाउंड इट फॉर माई सेल्फ, ऐसा कुछ है ही नहीं है। Am I not relieved of the pain of samsara? Yes. क्योंकि जो मैं पकड़ के बैठा हूं, जो अभी आएगी डोर खोलते हुए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ऐसे देखूंगा। इंटरेस्टिंग। जस्ट लाइक आप मूवी में एक्ट करने के लिए गए हो, और वो कहता है कि नाउ यू आर टेकिंग हस्बैंड रोल, बट जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन अ हस्बैंड रोल, कैन आई बिकम अ हस्बैंड? इट्स जस्ट अ रोल, एक पात्र है भाई, जस्ट एंजॉय द शो। मैं कहूंगा प्यारे कैसी हो, हाँ प्लीज गिव हर अ हग, हाँ ओके ओके आई फॉरगॉट,
तो देन थोड़ा रिहर्सल करके हग करेंगे। देयर नो इमोशंस, इमोशन डालो भाई, हाँ प्लीज आई रिमेंबर नाउ, पुट इमोशंस। और तो प्रेग्नेंट हो गई, मूवी में तो उतना ही दिखाते हैं कि हग करने के बाद बच्चा आ जाता है, सरप्राइजिंग। अब मैंने हग किया यहाँ पे। और पहले जमाने में क्या करते थे हिंदी मूवीज में, तो रोजेस को ऐसे ऐसे करते थे जस्ट टू एंश्योर दैट दे आर डूइंग समथिंग एल्स टू गेट अ बेबी, क्योंकि ये ना समझे कि आसमान से टपक गए, जहां से आना चाहिए वहीं से आ रहे हैं। आजकल इंडिया में चेंज हो गई, अभी हस्बैंड को भी छोड़ते हैं अंदर, वो जब भी वो इंजॉय करने के लिए, ठीक है, इंजॉय द सफरिंग, एंड नीचे वो कार के पीछे डाल देते हैं बेबी ऑन बोर्ड। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, बेबी ऑन बोर्ड है या बेबी ओवर बोर्ड है, हमें क्या करना है, और लिख लेते हैं बेचारे लोग। एनीवे, अगर ये नाटक खेलनी है तो ये पूछना है ये बच्चा किसका है, फ्रॉम वेयर डिड ही कम और फ्रॉम वेयर डिड शी कम। आंसर इज इट हैज कम फ्रॉम बिलो, दैट्स द ओनली आंसर। देयर इज नो अदर आंसर। सच में नीचे से ही आया है, ऊपर से तो नहीं आया किसी का भी, नीचे से आता है। और सुख से आया है, दुख से आया है, दुख से ही आया है। वो भी दुखी है, ये मां भी दुखी है, क्योंकि शी हैज टू टेक द पेन, एंड that child is going to rip off the woman's body completely. Horrible life. अच्छा, एक बार गलती किया ठीक है, दूसरी बार भी करते हैं, आई नीड अ सेकेंड चाइल्ड। दूसरी बार किया ठीक है, पता नहीं था, तीसरी बार करते हैं, तीसरी बार किया समझ में आया यही करना है ना, चौथी बार करते हैं। व्हाट ए अकम्प्लिशमेंट, ऑनेस्टली। कि आपको बार बार मेटर्निटी होम जाना इतना क्या मस्त लग गया है, पता नहीं। एनीवे, पता नहीं कैसे होता है, होता है। फिर चार चार बच्चे को देखभाल करना, एंड उसके बाद में स्कूलिंग करना है, ये वो 18 साल हो गया, गाड़ी चार चार गाड़ियां भी लेके आना पड़ेगा, जितने बच्चे हैं उतना गाड़ी, उतना लोन, उतना ये उतना वो, बाप रे। अभी स्टडीज, हायर स्टडीज, लोअर स्टडीज, ये वो, शादी, फिर उनका शादी, पर सारा नाटक है, नथिंग इज रियल। अगर ये मेरे समझ में आ गया, विल आई एवर रिएक्ट? नो, बिकॉज द परसेप्शन इज गॉन, the family perception is gone. So do I have a family? Now once the perception goes away, आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो गया, अभी परमानेंट है वो, इट्स अ परमानेंट मार्कर, एंड हेंस यू बिकम अनागामी, बिकॉज देयर इज नो काम छंद व्यापाद इन द परसेप्शन, आएगा ही नहीं है। क्योंकि जो लड़की, स्त्री वगैरह वगैरह जो था, जो स्टिकर्स था, वो चला गया। What he is seeing is only 32 parts of the body, which is of no interest. It's gone. Self-demonstratable. So, by looking at Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana, उसका टोटल परसेप्शन निकल गया। तो पहला क्या होगा,
अनिच्च संज्ञा हो गया, फिर अशुभ संज्ञा हो गया, सॉरी अनंत संज्ञा हो गया, फिर अशुभ संज्ञा हो गया, ये 3 संज्ञा आ गया। फिर आधीनव संज्ञा, डिसीजेस, 49 डिसीजेस। फिर विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सभ्य संखारेशु अनभिरत संज्ञा, आनापान सति। ये गिरिमानंद सुत्त का है। इसको पूरा समझ में आ गया, ये नौटंकी, ये नाटक का पूरा समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुशी से बैठा है, इसको तो वापस नहीं आना है। और ही कैन सेलिब्रेट दिवाली। यहाँ पे आज दिवाली की चल रही है, तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बिकॉज हिज माइंड इज इल्यूमिनेटेड, right? So my question here is, should I do Chuladasa or should I do Goenka? That's still a perception. Should you do, shouldn't do is a perception. But why should you do or why you shouldn't do is like this. पहली बात यह है कि हमें मन समता में आना चाहिए, मतलब you have to still the mind. As long as the stillness is not there, जब तक मन एक स्थिर पे नहीं रहेगा, डिस्टेबलाइज्ड है, ऐसा हो रहा है। बुद्ध कहते हैं इसको विक्षेप, ऐसा हो रहा है। अनिंज, इंज का मतलब शेकिंग, अनिंज का मतलब नॉन शेकिंग। तो पहले हमें करना है अनिंज। वॉट एवर यू डू, इट डजंट मैटर। विपश्यना करने के लिए अनिंज होना चाहिए, मतलब नॉन शेकिंग। ये ऐसे शेक होता रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टू गिव एन एग्जाम्पल, 2024 जनवरी में और एक्चुअली दिसंबर में आई फेल्ड ट्रेडमिल टेस्ट। तो हॉस्पिटल ने कहा मे बी यू हैव अ ब्लॉकेज इन द हार्ट, तो आपको तो सीटी एंजियो या एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। एंड माई पेरेंट्स बीइंग एंग्शियस पीपल, तो मेरा हार्ट पेस होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। इवन दो माई BPM इज 45 ऑल द टाइम, बट जब भी ये TMT टेस्ट हुआ तो 98, 100, 120 पर चला गया और मेरा ब्लड प्रेशर उड़ गया 160 के ऊपर। तो 7 मिनट का ट्रेडमिल टेस्ट था, बट आई वॉज एबल टू पास, बट देन ही सेड यू माइट हैव अ ब्लॉक। तो आई वेंट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। वो कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे बेटे से, बिकॉज माई सन इज अ डॉक्टर, तो उसने कहा मेरा पिताजी का ऐसा ही होता है, बट ही BP इज 120, 80 से नीचे रहता है। आई एम स्टैंडिंग गारंटी टू इट, यू डोंट हैव टू वरी। तो उन्होंने लिख के दिया कि हाँ, एज पर द सन हिज BP सो एंड सो, बट हियर इट इज शोइंग मोर। तो उन्होंने कहा देखिए विलास जी, आप ऐसा करो, यू हैव, आई विल गिव यू वन टैबलेट बिफोर यू गो टू CT एंजियो, आप ये खा लेना, आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा। तो अनिंज ये शेकिंग है ना, तो वो इट विल टेक अ फोटोग्राफ ऑफ योर हार्ट। अगर वो ऐसे 100 के ऊपर चल रहा है तो इट कैन टेक अ फोटोग्राफ। तो उन्होंने कहा 99.9% यू डोंट हैव एनी ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, पर फिर भी कह नहीं सकते, बट यू टेक दिस टैबलेट, इट शुड बी फाइन। सो आई वेंट ऑन 8th of January 2024 और CT एंजियो। 2 मिनट में लिक्विड डाला तो वो बताया कि no blocks. So the report also came, no blocks, no calcium. In fact, they had predicted I'll be having at least some ounce of calcium. वो zero है, मतलब CAD रैड करके डालते हैं, coronary artery disease zero है, and the possibility of getting coronary artery disease for next 10 years is 1%. That means at least till 65 years old, I don't have to go to the hospital to check again with the current rate. अच्छी बात है, nice. But the shakiness, they had to give me a tablet. यहाँ पे
विपश्यना करने के लिए आपका टैबलेट है आनापाना, जो गोयंका जी का टेक्निक में आप यहां देखते हो सांस के यहां, बट दैट डजंट हेल्प. Why? Because you are blocked on sensations. You will not be able to proceed. अभी क्या करें? Webu Sayadaw from POC tradition, he came up with a better than Ledi Sayadaw way of working या उबाकिन वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि उनके परसेप्शन में ये था कि इतना ही देखना है. देन ही फाउंड कि वहां देखने से अच्छा यहां पे है, क्योंकि यहां पे टचिंग जो होती है दैट विल गिव यू नॉट सेंसेशन, दैट विल गिव यू द वेदना, feeling, because Buddha talks about feeling, he doesn't talk about sensation. So we have to be on sensation or feeling, and the answer is feeling. And Goenka ji also says you have to be in feeling through sensation. बट हम लोग इतने आदत हो गए सेंसेशन के ऊपर कि हम फीलिंग भी सेंसेशन बना दी. नाउ वी कांट फील, वी कैन ओनली हैव सेंसेशंस. तो वेबू साइडो ने ये किया. अजान शाह, interestingly, and Ajahn Lee and Ajahn Mun actually, who started this, he said that you should wash the breath in the abdomen region, but that's where you get the maximum is right. तो मैंने पेट के ऊपर देखना शुरू किया, फिर छाती ऑटोमेटिक आ जाती है. इट्स नॉट दैट ब्रेथ इज ओनली हियर, ब्रेथ इज हियर इन द चेस्ट, ब्रेथ इज ऑल्सो इन द स्टमक. तो मेरा परसेप्शन इंक्रीज हो गया. यस, फ्रॉम हियर इट हैज कम हियर, तीन जगह पे दिख रहा. तो मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे बैठा था, सडनली एक जर्क हुआ. मैं देखता हूं, नाउ आई कैन सी द ब्रेथ फ्रॉम हेड टू टो टू हेड. और मैंने ये भी देखा जब ये ऐसा होता है तो यू गेट अ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, विच इन गोइंग का टेक्निक कॉल्ड है धारा प्रवाह. इन हिंदी ऐसा कुछ होता नहीं है, धारा प्रवाह करके कहीं बुद्ध में इसमें नहीं है, और फ्री फ्लो. बट एक्चुअली व्हाट यू गेटिंग इज एनर्जी मूवमेंट, फ्री, टोटली यू फील फ्री. तो दोनों हो रहा है. एंड व्हाट डज अजान शाह कॉल दैट? ही सेज योर बॉडी इज ब्रीथिंग. परफेक्ट. चाहे इसको धारा प्रवाह कहे, इट्स अ परसेप्शन. चाहे इसको बॉडी फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी कहे, चाहे इसको कहे कि ये पूरा योर होल बॉडी इज ब्रीथिंग, डजंट मैटर. व्हाट आर यू एक्चुअली हैविंग is this body is made out of breath, and hence it is called Kaya Sankhar. That is it. End of the story. If you are able to watch the breath from head to toe and toe to head, you are done it. Then you go slightly further. When you see the stops in the breath, in breath, stop, out breath, stop. In that, there is no you. When it stops, it stops. There's no breath. But you are there completely aware. It's pure awareness, not you, just awareness. Now, as you start that awareness, it starts to increase. Your awareness is increasing. What? How? Simple. Take a watch, put a mobile device and take a timer. You put 1 minute. Start counting the breath. On an average, a human being breathes 15 to 20 breaths a minute. And medical also says this is the figure. 15 breaths a minute into 60 minutes is 900 breaths. Into 24 hours, curly. So you get around 20,000 breaths in a day. Into so many, into years, and you'll come to know.
Now I feel every breath I should be aware. सती बढ़ती जाएगी, because breath is life, without breath is death. ये मेरे समझ में आ गया। तो मैं बैठा, you know what's going to happen? 20 था, 15 पे आ जाए, अगर 15 है तो 10 पे आ जाएगा, स्लोली 10 से 6 पे आ जाएगा, 6 से 3 पे आ जाएगा, 3 से 1 पे आ जाएगा। 1 minute, 1 breath. In fact, you will see on YouTube, practice to develop 1 breath a minute. I'm not joking. You'll find it. There are videos on 6 breaths a minute. There are videos on 2 breaths a minute. Just few videos on 1 breath a minute. ये कैसे? Actually, you don't require breath. If your mind is still, no breath. तो बुद्ध क्या कहते हैं? 4th ध्यान में असपस नहीं है, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ इज नॉट देयर। सही है। नाउ अगर मैं 3rd और 4th ध्यान पे आ गया, नाउ माई विपश्यना बिकम्स profound because mind is still. Now it can investigate. Vipassana means to investigate. Now I can take रूपा, immediate पता चल जाएगा कि रूप में क्या है, वेदना समझ में आ गया, संखार सब समझ, धातु समझ में आ गया, और राग कहां से आ रहा है ये भी समझ में आ गया। जब ये रूप बनती है राग आती है, रूप मिटती है तो राग चली जाती है। मैं देखा जब ये रूप ही नहीं है तो वेदना नहीं आती है, तो फिर संज्ञा नहीं होती है उसका, तो फिर संखार नहीं बनते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं आने वाला है। अगर मेरे पास बेटा ही नहीं था, क्या मैं बेटे का विज्ञान आएगा वहां पे? नहीं। अगर मेरे पास पत्नी ही नहीं है पहले से, क्या पत्नी का एक्सपीरियंस आएगी? नहीं आएगी। तो कौन मर रही है? पत्नी। तो मेरे पास पत्नी ही नहीं तो कहां मरेगी फिर? सिंपल। कौन मर रहा है? बेटा। अगर तेरे पास बेटा ही नहीं है, बेटी ही नहीं है, तो कहां मरेगा? कौन मरेगा? अगर विलास है मरेगा, विलास ही नहीं है तो कौन मर रहा है? For the very first time I've experienced deathless, अमर। ये मुझे समझ में आ गया। It's just a label। चला गया लेबल। अभी कौन है? Nobody। If Vilas is not there, is it Indian then? Makes no sense. Is he Buddhist? Makes no sense. Is he Hindu? Makes no sense. Is he in this world? Makes no sense. Is he out of this world? Makes no sense. Because all of these are required। कभी जब भी विलास है, किसने शादी किया? विलास ने। विलास ही नहीं है तो किसने शादी किया फिर? किसका बेटा है? विलास का। अगर विलास ही नहीं तो उसका बेटा किधर से आ गया? नहीं, विलास का घर है। अगर विलास ही नहीं रहा तो घर किधर से आ? तो नाउ आई कैन सी फॉर माई सेल्फ कि सोतापन्न के बाद इफ आई डोंट हैव पोसेशन, अगर 8 लोकीय धम्म नहीं है तो लगाव ही नहीं है, नो पोसेशन। क्योंकि अगर लाभ चाहिए तो विलास होनी चाहिए, अगर लाभ ही नहीं है तो मतलब विलास ही नहीं है तो लाभ और अलाभ की कोई होती नहीं।
तो मैंने एक एक करके देखता जा रहा हूं, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है। पहले परसेप्शन में ये था कि मेरे लाभ चाहिए, अभी मैं देखता हूं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इफ देर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ लॉस। इफ आई एम आउट ऑफ बोथ ऑफ देम, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी। दूसरा, ये यश आयश, somebody, यशस का मतलब ये होता है कि प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी ऑन व्हाट? ऑन सम नंबर। इट्स अ नंबर गेम। अगर मैं नंबर को हटा दिया तो, जैसे मैंने 25 लाख का कहा, लाख को हटा दिया तो 1000 में आ जाएगा, 1000 को हटा दिया तो 100 में आ जाएगा, 100 को हटा दिया 1 में आ जाएगा, 1 तो हटा दिया तो कुछ नहीं है। परफेक्ट, वेरी नाइस। फिर आता है निंदा प्रशंसा, ब्लेम एंड प्रेस। व्हाट एम आई प्रेस फॉर? अगर किसी को मुझसे बेनिफिट हो रही है तो प्रेस करेंगे। उदाहरण, अभी लास्ट सितंबर में मैंने यवतमल में एक शिविर किया था। 32 लोग आए थे। एक बीच में चली गई बिकॉज ऑफ हर पर्सनल इश्यू। 31 लोग थे। हर एक 31 लोग में कुछ ना कुछ उनको एक्सपीरियंस हुआ, सो दे प्रेस्ड मी। अगर मैं वो सच मान के चलता हूं तो मेरे जैसा पागल कोई नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मिला, उन्होंने प्रशंसा की, प्रेस। अगर नहीं होते तो क्या होता? ब्लेम करते किसको? हमारे ग्रुप में एक रविंद्र करके है, उनको इतनी गाली देते, क्योंकि उनके एक धम्म ग्रुप है, वहां से लोग यहां आए थे, क्योंकि ये यहां आए हैं, तो उनका गाली, ये लोग इतने गाली देते उनको मराठी में, बेचारे कहाँ भागते पता नहीं। सो आई वॉज फीलिंग कंपैशनेट टू रविंद्र जी कि मेरे वजह से उनको गाली नहीं सुननी पड़ी, क्योंकि ये लोग ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी थे, उनको खा जाते कच्चे, तो कुछ नहीं मिल रहा है उनको। उन्होंने हर महाराष्ट्र से आए हैं वहां पे, तो जैसे मैं कह रहा हूं करने चाह रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति को हो जाता तो ठीक है, किसी को नहीं हो रहा है, और समझिए रविंद्र जी को भी नहीं हो रहा है, तो क्या क्या हो गया? अभी परसेप्शन क्या हो गया? ये कोई फायदा ही नहीं है। मतलब 32 लोग आए, 32 लोग को भी एक को भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हार्ड टू बिलीव इज टीचिंग बुद्ध धम्म। तो क्या हो गया? 31 लोग को हुए, और वहां पे जो बनते हैं उन्होंने कहा विलास जी बहुत अच्छे कर रहे हो, तो उन्होंने दान में कुछ दिया। आई वॉज शॉक्ड, ऐसा भी होता है। ही वॉज सो हैप्पी। ठीक है, पर निंदा प्रशंसा, अगर मैं प्रशंसा को पकड़ता हूं तो निंदा तो एक दिन तो आएगी, फिर सुख और दुख। तो ये 8 लोकीय दम को बाहर आ गया। उठस्य लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम। ये मुझे याद आया मंगलसूत्र का। विलास भाई, ये तुम मत लो, चाहे लोग जितना भी प्रशंसा करें, एक भी मत लेना, और तेरा अकाउंट में जितना भी पैसे डाले तेरा नहीं है। तो in 2018, before I started this retreat, or sorry, this course in English for Sri Lankans, तो मैंने तभी ही मैंने तय किया था कि कभी भी बुद्ध धम्म जो मैं बात करूंगा,
इसमें मेरा करके कहीं नहीं आएगा। आई विल टेक द सुत्ता रेफरेंस, मेरा नहीं है, सुत्ता में है, मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया है, ऐसा मुझे मिला है, चाहे कोई माने या ना माने, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। Because somebody will blame and somebody will praise. And why will he blame? Because he didn't get any benefit. And why will he praise? Because he got benefit. तेरा प्रॉब्लम क्या है विलास? तुम अगर समझोगे कि तेरे कारण ये हुआ है, गलत, क्योंकि तो तुम बता रहे हो, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है तुम बता रहे हो, या तुम्हें जो समझ में आता है तुम बता रहे हो, वो शायद इनको समझ में आए या समझ में ना आए। जिनके समझ में ना आए गाली देंगे, जिनके समझ में आए प्रशंसा करेंगे, पर दोनों झूठ है, ये दोनों परसेप्शन है। बच कह रहे ना भाई। तो फ्रॉम 2018 नाउ वी आर इन 2025, 7 साल हो गया। आई हैव नेवर टेकन अ सिंगल डे दैट ये मेरा है, उनका है। तो अगर हम ऐसे रखते हैं, अगर मैं ऐसा रखता हूं, तो मन में परसेप्शन चेंज हो गया। जैसे परसेप्शन चेंज होता है, उसके साथ जितने भी अटैचमेंट है वो सारा चला गया। तो बिकेम सकदागामी। I can know it for myself. This is the state of Sakadagami. And anybody can be in that state. If he knows this much, not to possess anything, not worth possessing, तो चला गया. Then comes a state when everything is stilled. And then you enter into 8th jhana. And then you come out in the 9th jhana. And you know you have done Nirodha Samapatti. That's a awakening moment. ये तो मिस ही नहीं करना है किसी को. You need all the 9 jhanas. अगर कोई कहे ध्यान क्यों करना है, Where does Buddha say? हर एक सूत्र में है. Number 1. Number 2. Some people talk about Panya Vimukti. Absolutely true. But it's only reserved for Vipachitanyu and Ugatitanyu. हम लोग यहाँ पे कोई भी नहीं है. None of them, no Bhante, nobody qualifies for that at all, because it was only at the time of Buddha and 1000 years after Buddha, there were people who still existed like that. आजकल जो कोई भी है, दो ही चीज वाले हैं. एक पद परम, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आएगी, या नहीं है जो बहुत कठिनाई से उनको समझ में आती है. यही दो लोग हैं. तो बेचारे लोगों को क्या करें? They have to go by the difficult path, which is combining jhana and vipassana. Now, if you take Goenka tradition, anapana, vipassana, perfect. If you take Vibhu Sayadaw, यहाँ पे देखो, almost like anapana, and then come to vipassana, body sensation. Then you come to Ajahn tradition, breath watching, complete body, anapana. Then Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, 5 things you need to investigate. That is vipassana, not sensation. Sri Lanka, knowing the sutta to get into sotapanna. फिर उसके बाद में अलग है. तो because we are not Ugatitanyu, Vipachitanyu to get like this, हमें ये झेलना पड़ेगा कि हर एक ट्रेडिशन कुछ कहता है. कंफ्यूजन आएगा, 100% आएगा कि मैं किसको लूं किसको ना लूं, ये आएगा. दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड डिफिकल्ट पाथ. अगर हमें समझ में आ गया
अच्छी बात है। तो वी हैव टू पुट मोर एफर्ट अदर देन द पर्सन हु इज टॉकिंग, कि समझो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो या कुछ भी देखते हो, यू शुडंट स्टॉप देयर। आपको सुत्ता भी लेना पड़ेगा, स्वयं देखना पड़ेगा बुद्ध क्या कहते हैं। बिकॉज मैं क्या कर तो सकता आया कोई बात नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं सुत्त आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये ऐसा कर सकते हैं, पर आपको सुत्त लेना है और अपने आप में देखना है कि अब समझ में आ रहा है। नहीं तो आपका परसेप्शन चेंज नहीं होगा। जब तक परसेप्शन चेंज नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या परसेप्शन चेंज होना है? जैसे विलास है, एक परसेप्शन है, उससे हट के देखना है। बिकॉज विलास इज द वन हु इज डाइंग, ही विल बी सून गॉन। अभी 54 ईयर्स हो गया, हाउ मेनी मोर ईयर्स? 46 if I close all 100? I don't think so that I'll be physically fit like this at 100. So minus 20 from that side, कितना आएगा? 80 पकड़ेंगे तो another 26 years. But at 70 you have more strength, so you have to minus another 10, 16 more years. That's it. That's all what is remaining as breath. 16 years of breath. मेरे पास उतना ही फ्यूल है। Just like aeroplane which has to land somewhere, इतना ही फ्यूल है उसके पास। तो कौन सी एयरपोर्ट पे लैंड होगा, इट डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल। इन द सेम वे कहाँ पे ये पैदा हो जाएगा, इट डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल, द ब्रेथ। So where should I keep my perception? Breath here, here, or in the abdomen, or the whole body. And then do vipassana. Then my perception is anicca, dukkha, anatta, the tilakkana. So hope I helped you in removing some confusion, if not all the confusion what you have. Because today's was perception, thought it might help you or help others also. या बहुत हेल्प किया सर, बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। तो मेरे को तो अभी छोटे में क्या समझ में आ रहा है कि आज तो मैं आपसे बात करूंगा कि गोयनका जी ऐसा बोलते हैं, आप यूं कहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। तो अभी तो मेरे को लगता है कि इट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज वहां पर गोयनका गुरु जी ने भी वो 10 दिन के कोर्स में जिसमें कुछ बताए हुए हैं, वो डिटेल की तो कोई चांस भी नहीं है, सब तो समझते भी नहीं है। तो अभी तो इसी की एडवांस रूप में ये तो आ रही है, इसमें तो कुछ छुटाने वाली बात या कुछ उससे कंट्राडिक्ट हो गई है, ऐसा बात तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि मैं भी ग्रुप में जुटा हुआ हूँ, मैं ग्रुप के मित्रों से भी बात किया करता था कि इनके यहाँ जुटना है तो आप क्यों जाते हो, क्या करते हो। तो जो अमर जी गए, इनके जाने से आगे से मैं इनसे मैं एक बार ग्रुप सीट में बैठा था, इन्होंने सूत्र की बात किया, क्या किया, मैं तो उस वक्त बोला कि ये तो ज्यादा बोल रहे हैं, बात तो गोयनका जी गुरु जी ऐसा नहीं कहते हैं। फिर ये गए, ये भी मेरे को पता है। तो होते होते मैं सुन तो रहा हूँ, क्रिटिसाइज भी देख रहा हूँ कि जो जिस तरह से आप बोलते हैं कि अनिच्छा वो ऐसा कि मैं अटैचमेंट हुआ तो गुरु जी से कि ये जैसे आप बोलते हो कि वो हर्ट तो करती है। कितने बार लगा कि मैं भी कुछ लिखूं, तो अभी तो ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि लगता है कि बात तो बराबर बोल रहे हैं। तो अभी तो लगता है कि वो तो सब कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एडवांस लेवल में आप साधना के क्रम में करो तो यही अच्छा है। जैसे एक लास्ट में बोल रहे थे कि जैसे आशुतोष आपके बीच में जो बात हो रही थी कि वो वेदांत की और गीता की बात ला रहे थे, उसमें भी परसेप्शन की बात है। तो आपने कंक्लूड किया हुआ था कि परसेप्शन उनके हम ब्रह्मास्मि करके उसके परसेप्शन बैठी हुए है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल लोग
इस लेवल में उनको समझ में आ ही गई, मगर उनकी तो एक परसेप्शन है। तो दूसरी बात आपने जो बोला कि 1000 ईयर आफ्टर बुद्धा's डेथ, कि उसके समय में ये लोग रहे होंगे कि सुनते ही उसको जैसे कि वो एक एक पंक्ति आती है कि उसने वो सुनने में सुनो, देखने में देखो कि वो अनंत हो गए। तो कहीं मैं लेडी साइड की एक एसेंशियल ऑफ एनलाइटमेंट कोई पढ़ रहा था, उनके यहाँ भी कोई सूत्र करके उन्होंने दिया था कि अभी कोई भी बंदा 1000 ईयर तक बंदे लोग थे जिसके पास में इतने पारमिता थे, मगर इसके पीछे तो कोई भी बंदा इतने लेवल की समझदार तो है ही नहीं है। तो टाइम ही परमिट नहीं करती है, तो कैसे बंदे उस लेवल के आएंगे? तो फिर जाना तो इसी तरह से जो आप बोल रहे हो, तो यही होनी चाहिए। तो इसको आई एम वेरी हैप्पी दैट कि ये मेरे को जो कंफ्यूजन था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है। तुलदास की भी जो मैं सुना था 1 घंटे से ज्यादा, उसमें भी वो भी वही करते हैं कि भाई इसमें मिक्सअप ना करो, ये बात ये है। तो जो ध्यान की जो हमारे 80 लोग हम मेरे को बताएं कि हम बात नहीं करते हैं, मगर जो स्टेजेस आपने बताया तो स्टेजेस तो वहां पर वही होती है। तो ध्यान बोल के आप ना बोलो तब भी वो बातें तो वहां हो ही रही है, क्योंकि एडवांस लेवल में जो बंदा जाएगा समझ के, तो उससे भी जो आप 9th लेवल तक के ध्यान की जो स्टेज की बता रहे हो, तो रिजल्ट से आप देखो तो वो तो आप ध्यान के लेवल में आप वहां भी जा रहे हो, मगर आप शब्द से वो ध्यान से जो परसेप्शन है आपकी, ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं होती है, तो उसके वजह से आपको एजिटेशन हो रही है। नहीं तो होने की क्रिया तो वहां भी वही हो रही था। कैसा लगा गुरु जी? सही सही सही, परफेक्ट। मधुलिका जी कहिए। थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव। नमोदय सर। सर मैं बस ये शेयर करना चाहती थी, मेरे जो पिताजी हैं मतलब अराउंड 2014 से पहले से ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने गोयनका जी का और लेडी सेयाडो का ही फॉलो किया, और जितने जो भी सुत्त के ट्रांसलेशन वाली बुक्स है वो गोयनका जी के रेफर किए, उन्होंने एक्चुअल सुत्ता पाली वाले नहीं किए। तो ये जो ध्यान को लेके बहुत कंफ्यूजन था ना, कि उनको ये लगता था ध्यान से विपश्यना नहीं होती है एंड लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो हार्डकोर उस चीज को बिलीव करते हैं। तो जब मैं आपकी जो भी वीडियोस उनके साथ शेयर करती तो हमारा ना बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता था। एंड फिर मैंने उनसे मध्यम निकाय का 111 सूत्र जो अनुपात वाला है, जिसमें सारीपुत्र ध्यान के थ्रू विपश्यना करते हुए एनलाइटन होते, तो वो मैंने उनसे शेयर किया। देन ही इवेंचुअली रियलाइज, बट द थिंग इज, बिना खुद से, जो आपने कहा ना कि सूत्र खुद पढ़ना चाहिए, बिना वो खुद ट्रांसलेट किए उन्होंने अपने जीवन का जो बहुत क्रूशियल टाइम है अराउंड 10 से 11 साल, मतलब वो मैं भटकना तो नहीं बोलूंगी, बट सही डायरेक्शन में नहीं गया। तो अब उनको रियलाइज होता है। एंड जो आपने बोला कि हाँ सूत्र खुद से भी मतलब पढ़ने चाहिए, एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो द रियल धम्मा। एंड डेफिनेटली हम वो देख सकते हैं कि जो भी गोयनका जी ने सिखाया डेफिनेटली वो बुद्ध धम्म में लाने के लिए सही था, बट आगे बढ़ने के लिए नहीं था। मतलब वो वहीं पे हम सब रुक जा रहे थे। मैंने खुद अपने इसमें देखा, अपने पिताजी के इसमें देखा, एंड एक समय के बाद तो बहुत उस इसमें हो गए थे कि नहीं वही सही है, मानने को भी तैयार नहीं होते थे। तो बट इवेंचुअली जब आप खुद पढ़ते हो देन यू रियलाइज कि नो दिस इज व्हाट बुद्धा हैज बीन सेइंग। तो इट इज एक्चुअली आई ओपनिंग। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब यू हैव बीन सच अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, मतलब कि सही तरीके से कैसे करना है। आई मीन इफ यू लुक आउटसाइड, इट्स बीन 10 years आई हैव बीन हंटिंग अराउंड, आई कुडंट फाइंड इवन अ सिंगल टीचर हु कैन डायरेक्ट अस कि हाँ दिस इज द राइट वे टू डू इट, राइट? सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। घनश्याम दास जी। जी सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सर आज का जो आज की क्लास का जो वृत्तांत है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये धम्मपद में जो एक गाथा है पोफ भाग्य की, ये धम्मपद में 46 नंबर की गाथा, ओ फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरीच धम्मं अभिसंबुद्धाना छेत्वान मारस पफुपकानि अदस्सनं मच्चुराजस गच्छे। तो तथागत ने जो भिक्षु विचारों को जानकर जो उनको
शरीर के बारे में जो देशना दी थी कि यह शरीर ऐसा ही है, फेन और मरीचि के समान उत्पन्न और नाश होने का के स्वभाव वाला है, कहकर उपदेश देते हुए ये गाथा कही थी। तो सर आपने इस गाथा को डिटेल में आपने और परसेप्शन को लेकर आपने कितनी खूबसूरत ढंग से समझाया, और इंग्लिश, हिंदी और पाली के माध्यम से जो आपने इतनी डिटेल उसमें बताया कि ये तमाम ट्रेडिशन में जो अपने अपने ट्रेडिशन में लोगों ने किस किस तरह से उसको वो एक्सप्लेन किया। तो सर इस तरह से आपका ये मेरे को ये गाथा का वो धम्मपद की गाथा का याद आया, तो मैंने कहा मंगल हो, बहुत अच्छा लगा सर, आपका ये मंगल हो, समझ में आया। वेरी गुड, ऐसा ही हो। हाँ, वो 46 वाला उसका है, पर एक्चुअली सुत्त है फेन पिंडूपम सुत्त, उसमें अगर गाथा गाए तो ये ऐसा आता है कि फेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीच उपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ट बंधुना। जी सर, इसके आगे जी भी सर, है, जी तो सर, वो पूरा गाथा होता है। जी सर। तो ये सर आपने सारे जो ट्रेडिशन इतने सारे हैं उन सब का कंपैरिजन कंपैरेटिवली जो डिटेल में इस तरह समझाते हैं कि वो बिटवीन द लाइंस जो लोगों को समझ में नहीं आती वो भी समझ में आ जाती है सर। तो ये बहुत एक्चुअली अच्छा क्या सर, है ना, बहुत अगर देखिए, साधु सर। हाँ सर। जी, अगर जी। मैं आज स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मुझे गोयनका जी का ही शुरू करना पड़ेगा, जी क्योंकि उससे अच्छा और कुछ नहीं है। अगर मुझे 10वीं कक्षा के ऊपर जाना है तो ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या हो गया, स्कूल से बहुत लगाव हो गया। मैं कहने लगा राइट पापा सर। पापा मुझे यहीं रहना है, और पापा कह रहे भैया ये इतना ही है भाई, इसके बारे में इसके बाद में तुम्हें कॉलेज जाना। मैं कहता हूँ नहीं, इधर ही रहना है। जी सर। वो नहीं है, क्योंकि हमें चाहे हम जिनसे भी शुरुआत करें, जी बुद्ध के वाणी पे ही आना चाहिए, जी जी क्योंकि एक्सपीरियंस बुद्ध से होने वाला है। राइट सर। और जो निब्बाण का एक्सपीरियंस होता है वो भी बुद्ध के यहाँ से ही होता है। जो अनागामी का स्टेज हो, अरहत का स्टेज हो, वो भी बुद्ध से ही बनती है। और हम लेकिन सर आपके माध्यम से इतना सरल ढंग से समझ में आता है सभी लोगों को, ये मेन बात है सर। अच्छी वैसे बात है। तो बहुत वर्षों से ये सब चल रहा था, लेकिन हम लोगों को ऊपर से बहुत सी बातें जाती थी, लेकिन आपके सानिध्य में आने से बहुत सरल ढंग से बहुत बातें समझ में आने लगी हैं सर। धन्यवाद, आपका मंगल हो। साधु, साधु, साधु। चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कल संखार को लेते हैं, संखार कैसे बनते हैं, वो बड़ा टॉपिक है, वो 2 दिन चलेगा। कल और कल मतलब मंडे एंड ट्यूसडे दोनों लगेगा, क्योंकि संखार ही मेन है। सब संखार समथो जो है, या ये बुद्ध जो कहते हैं सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। तीसरा, सब्बे संखारा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। अगर हमें विशुद्धि मग्ग जानना है सही तरह से, तो संखार को काटना है। और जी सर। संखार को काटना है तो फस को काटना है। फस के बिना संखार नहीं कटते। इसीलिए शायद ये 2 या 3 दिन तक जाएगा। मैं जितना हो सके एग्जाम्पल उदाहरण के साथ देता हूँ, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। देखते हैं ज़्यादा हिंदी यूज़ करें, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको ये तकलीफ ना हो कि ये तो इंग्लिश में बात करते हमें समझ में नहीं आती है।
और अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कन्नड़ा में नहीं कर सकता। अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे कन्नड़ा वाले भी हैं, उनका शिकायत यही है कि आप हिंदी में बात करते हो, हमें हिंदी समझ में नहीं आती है। अभी हम कन्नड़ा में बात करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे हिंदी में या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो दे हैव टू एक्सक्यूज मी। पर आप जब भी घर आओगे, मेरे घर आओगे, तो कन्नड़ा में ही बात कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं कि मुझे कन्नड़ा में बात ही नहीं करना है। भाषा कौन सा भी हो, धम्म तो धम्म होता है। अगर वो हिंदी में कहेंगे तो भी वही धम्म है, इंग्लिश में कहेंगे तो भी वही धम्म है, कन्नड़ा में कहेंगे तो भी धम्म है, तमिल में कहेंगे या कौन सा भी भाषा में कहेंगे, भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी ना सोचे कि पाली श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि वो भी लगाव है। दैट इज ऑल्सो एन अटैचमेंट। यू शुडंट हैव अटैचमेंट फॉर एनीथिंग। क्योंकि मेरे क्वेश्चंस ये आते हैं, आपको पाली कहाँ से सीखा? क्या उत्तर दूं? पाली मैंने कहीं से भी सीखा है, वो अलग है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाली मैंने पीएचडी किया है, तो उससे क्या करना है? तो मैंने किसी को कहा, अपने आप आ गए। वो पूछने लगे कैसे आता है? मुझे क्या पता है? अगर मैं पता होता तो मैं कह देता कि हाँ मुझे ऐसा है। तो उन्होंने मुझे पूछा, मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, जो मुझे सरल में आया है वो मैं कैसे सिखा सकता हूं? अगर मैंने कहीं स्कूल जाके सीखा है तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यहां जाके सीखा है, आप भी सीख लो। जो चीज अपने आप आई है तो हम उसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। तो एक और व्यक्ति मुझे पूछा, आप ये वर्ड्स कैसे स्प्लिट करते हो, यहाँ कहाँ पे है? तो मैंने कहा देख ऐसा है, इसको बुद्ध कहते हैं पद निरुक्ति, इसका वैयाकरण करके कहते हैं। और साथ है, जैसे गाता है, सुत है, वैसे वैयाकरण आता है, तो व्याकरण, ग्रामर। तो उसमें पद निरुक्ति आती है, मतलब एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश में कहा तो एटिमोलॉजी है। तो एटिमोलॉजी मुझे आता है। अगर कोई प्रश्न पूछता है कैसे आता है, तो मेरे पास उत्तर नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं तभी आ जाता है। कहां से टपकता है? टपकता है। उससे लेकर किसी को क्या करना है, चाटना है क्या उसको, कुछ अचार बना के? नहीं, इसका जो सार है आप उसको खाओ, वही ठीक है। जैसे बुद्ध कहते हैं, सार है असार है, लैंग्वेज असार है, पर धम्म सार है। मतलब भाषा के माध्यम से जो हम करते हैं वो सार है, भाषा असार है। भाषा के ऊपर नहीं रहना है, भाषा लेकर हमें धम्म को समझना है। ये याद रहे, क्योंकि ये भी एक अटैचमेंट है, पाली का भी अटैचमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुद्ध का भाषा मतलब पाली नहीं। लोकल लैंग्वेज मैथिली का, सॉरी अर्धमागधी है वो, जो उस प्रांत का लैंग्वेज था पाली। दूसरी क्वेश्चन, संस्कृत और पाली, प्राकृत, ये तीनों साथ में हैं, साथ में रहते थे, साथ में रहेंगे, वैसे चलता रहेगा। तो जो प्राकृत जानता है वो पाली भी जान सकता है, क्योंकि महावीर का जो लैंग्वेज है प्राकृत है, वो भी अर्धमागधी ही है। उनका भी पाली भी आती है और संस्कृत भी है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं है। अगर जैन आगम पढ़ेंगे उसमें संस्कृत है, उसमें प्राकृत है। और नमोकार मंत्र जो है वो प्राकृत है, वो पाली नहीं है। तो मुझे तीनों आता है, मुझे संस्कृत भी आती है, प्राकृत आती है, पाली आती है। ये कहां से आती है छोड़ दो, आती तो है तो अच्छी बात है कि किसी को तो आती है।
जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक तो आएगा तो अच्छी बात है ना, वो ट्रांसलेट करके बता सकता है कि इसका मतलब ये है, बस हो गया। हमें क्या करना है उससे, थोड़ी हमें इसके पीछे जाना है, हमें तो समझ में आना चाहिए क्या बुद्ध क्या कह रहे हैं। तो ये कहा है, बस हो गया, ट्रांसलेट अच्छा हो गया, ब्यूटीफुल, आगे बढ़ो। तो डोंट मेक अटैचमेंट टू लैंग्वेज, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। एनी अटैचमेंट ब्रिंग्स यू सफरिंग, तो गोयंका brings you suffering. Okay. And oxide, that also brings suffering. Anything you attach is suffering. Ajancha, anything you take is a suffering. What is non-suffering? Anutpada parinibbana. In fact, Buddha says, don't hold my dhamma also. It is a suffering. You have to let go Buddha Dhamma. चाहे हम जितने भी सीखे हैं, बाद में उसको भी छोड़ना है। That's also suffering. That leads to rebirth. नहीं पकड़ना है। So don't get into attachment. Attachment to any teacher, attachment to any tradition, attachment to language, no attachment. You are using it just as a tool. And don't get attached to me also. चाहे मैं जितना भी अच्छा हूं, no problem. मरने के बाद कहाँ गया, सिर्फ फोटो आ जाएगा, born so and so date, died so and so date. तो लोग कहने लगेंगे विलास जी का परिनिब्बाण हो गया। ना, विलास मर गया। Just another language mockery. Parinibbana. He's dead. That's a fact. And he's dying every day. He didn't die one day. No, every day. Every day. Right? Everyone, every day. So Buddha died at 80. Somebody died at 90. Somebody died at 60. Somebody dies at whatever. But सब मरेंगे। मार को किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते। इस लाइफ में मार हमें पकड़ेगा, पर आगे आओगे कि नहीं आओगे वो आपके ऊपर है। So practice to become anagami at least, and you can be one. It's possible, feasible. ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, इस जन्म में नहीं होगा, झूठ है, कहीं पर भी नहीं है। बुद्ध धम्म एक ही धम्म है जो इस जन्म में इसी क्षण में हो सकता है, बाकी में वेटिंग पीरियड है। जैसे H1B के लिए वेटिंग पीरियड है, यहाँ पे आपके लिए वेटिंग पीरियड नहीं, अप्लाई करो रिप्लाई आ जाएगा, बस हो गया। But you should know which application to apply. So I don't have to file for DS 160. यहाँ पे DS का कुछ भी नहीं है, एक ही एप्लीकेशन है, उसका नाम है पंचखंड। ये समझ में आ गया तो हो गया। Okay, good night and good day and Good night, good day. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Good night.